Hello, hello, my dear student. In last lecture, we are discussed about the work, okay, in terms of science. Okay? So we have defined the work. We have said that work is said to be done when the force is applied on the body and the object is displaced in the direction of applied force. Then only we can say that work is to be done, and work to be done is defined by the product of applied force into displacement. Okay, so we have defined the work is equal to force into displacement. Okay, the work done is equal to the multiplication of force applied on the body into displacement of the body in direction of applied force. Okay, now here, okay, next topic we have to study about is energy. Okay, energy. So actually we know the energy. What is energy? Okay, हम जानते हैं एनर्जी क्या है, पर in terms of science एनर्जी क्या है हमें देखना है. तो we are understand the work done. तो हम कोई भी वर्क करते हैं. So do this work we require some energy. We have to expense the energy, and this energy is converted in form of work. For example, okay, we are running, it means we are doing the work. Okay, to run this we are using the energy from our body, which energy we should get by the food. Okay, so food gives us energy, and because of this energy we can run, and after running sometimes we should get tired, because whatever the energy in our body, this energy is expensed into the running, वो खर्च हो जाएगा. Car is going, so car is running, so car is running, so to run the car we are using the fuel. So fuel is nothing but an energy. It means we are expenses, we are using the energy to run the car, whether petrol or diesel is used. Okay, we are running the any electric instrument, so we are using the electrical energy. It means work is to be done by use of energy, and this energy is converted in form of work. Okay, so in this relation we can define the energy in terms of science is, so what is the energy? So energy is a capacity of doing work. जितनी एनर्जी हम खर्च करेंगे उतना वर्क हम कर पाएंगे. या तो हम कितना वर्क कर पाएंगे, हमारे पास जितनी एनर्जी है उतना वर्क कर पाएंगे. अगर हमारे पास ज्यादा एनर्जी है, हम ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे तो ज्यादा वर्क होगा. अगर हमारे पास एनर्जी कम है, या तो हम कम एनर्जी खर्च करते हैं तो कम वर्क कर पाएंगे. मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी टू द वर्क. एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ए कैपेसिटी टू डू द work is defined as a energy. So how we can define the energy? Okay, so energy is defined as the capacity of do the work. कैपेसिटी ऑफ डू द वर्क, कितना हम वर्क कर पाते हैं, हमारे पास वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी. ओके, सो एनर्जी इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. ओके, एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल, सेम एज ए वर्क. ओके, सेम एज ए वर्क, बिकॉज व्हाट हैपेंस, एनर्जी is converted in form of work, or work can be converted in form of energy. दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन हो रहा है. या तो एनर्जी के जरिए हम वर्क कर रहे हैं, या तो वर्क करने के जरिए हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं. मतलब एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, और वर्क इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ
energy, vice versa, both same है. So unit of work and energy both will remain same. दोनों का unit है वो same रहेगा. So SI unit of energy is also joule, same as SI unit of work. Okay, so different type of energies we are using our day to day life. बहुत सारे अलग अलग प्रकार के energies हमारी लाइफ में है जिसका हम यूज करते हैं. So what are the types of energy? कितने टाइप्स के एनर्जी है जिसको हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे हम यूज में ले रहे हैं. ओके, सो सम ऑफ द एग्जांपल वी आर सीन इज केमिकल एनर्जी, जो कॉल है, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, ये सारे गैसेस है. ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है जिसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है और बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इट प्रोड्यूस द एनर्जी. दिस एनर्जी यूटिलाइज टू डू द सम वर्क. सो दिस इज नथिंग बट केमिकल टाइप ऑफ एनर्जीज. ओके, अनदर टाइप हीट एनर्जी है. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके टेम्परेचर को हम राइज करते हैं. जो टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी. टेम्परेचर डिफरेंस से जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी. जैसे हम वाटर उनको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके, सो वी आर गेटिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टीम. सो दिस एनर्जी इज नथिंग बट ए हीट एनर्जी. देन लाइट एनर्जी है जो सेंसेस ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है. सनलाइट है, हम लैंप से लाइट बनाते हैं तो वो एक, दिस इज नथिंग बट ए वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके जरिए हम हमारे आइज से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. जो लाइट एनर्जी हमारे आइज में सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रिक एनर्जी. हम अलग अलग बहुत तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी को बहुत सारे अप्लायंसेस चलाने के लिए यूज कर सकते हैं. हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है. जो एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका फ्यूजन और फ्यूजन जब होता है, ठीक है, या तो दो न्यूक्लियस है वो कंबाइंड होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एक एटम्स बनाते हैं, या तो कोई भी एक एटम है उसको डिवाइड होके उसमें से 2 या 4 एटम्स में पार्ट होता है, तो फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस होता है. उसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं. न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होता है जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है जो है वो. ठीक है, सोलार एनर्जी जो सन से हमें मिलती है, जो एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे सोलार पंप चला सकते हैं, सोलार कुकर का यूज़ कर सकते हैं, सोलार हीटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हर जगह पे हम सोलार एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. विंड एनर्जी, जो विंड है उसकी जो स्पीड है उसके जरिए जो हमें एनर्जी मिल रही है वो विंड एनर्जी है. इसका भी विंड फार्म में हम यूज कर सकते हैं जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओशन एनर्जी, ठीक है, समुद्री जो वेव्स है, टाइडल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ से भी हमें एनर्जी मिल सकती है. जो टाइड है, वेव्स है सी वाटर का, उसको भी हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर का और अर्थ के नीचे अंदर जो है दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो है, ठीक है, वो टेम्परेचर डिफरेंस को भी हम एनर्जी के जरिए यूज कर सकते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी है. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, सो बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको मोशन में लाके हम एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट इसकी पोजीशन को हम चेंज करके एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, या तो उनका शेप है उसको चेंज करके हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है,
वो बॉडी की स्पीड है, चाहे या तो बॉडी की वेलोसिटी है, या तो बॉडी की पोजीशन है, या तो बॉडी का शेप है, जिसको चेंज करके हम उसमें एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। सो देयर इज वेरियस काइंड ऑफ एनर्जीज, बहुत सारे टाइप का एनर्जी है जिसका अलग अलग जगह पे अलग अलग तौर तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी? द एनर्जी ऑफ द होल वर्ल्ड विल रिमेन सेम, never energy can be created, never energy can be destroyed, always one form of energy is converted in another form of energy। पूरे दुनिया की जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहते हैं। हम कोई एनर्जी को नहीं तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक एनर्जी फॉर्म का दूसरे एनर्जी फॉर्म में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस काइंड ऑफ एनर्जीज हो सकती है। यहाँ पे हमने देखा कि केमिकल एनर्जीज है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलार है, विंड एनर्जी है, ओशन एनर्जी है, जियोथर्मल है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो दिस इज नथिंग बट ए वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज जिसका हमारी लाइफ में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे एनर्जीज के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। इस चैप्टर में यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो क्या है मैकेनिकल एनर्जी, देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हमने देखा द एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी। बॉडी में जो एनर्जी प्रोसेस होती है, प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, या तो उनकी स्पीड चेंज होती है जिसके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या तो उसकी पोजीशन चेंज होती है जिसके जरिए उसमें एनर्जी, या तो उनका शेप जो चेंज होता है जिसके जरिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन the energy, okay? The energy possessed by body, the energy possessed by the body because of, किसके जरिए, because of change in, किस में हम चेंज करते हैं, चेंज इन इट्स स्पीड, या तो चेंज इन इट्स पोजीशन, या तो चेंज इन इट्स शेप। या तो हम बॉडी की स्पीड चेंज करते हैं, या तो बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं, या तो शेप चेंज करते हैं। ओके, इज कॉल्ड ए मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो या तो बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो पोजीशन चेंज होती है। जब बॉडी की स्पीड चेंज होती है तब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और जब पोजीशन चेंज होती है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो आगे हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट, ओके, it is a sum of kinetic energy plus potential energy। मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है, उसका एडिशन होता है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कि तो इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक
एनर्जी। सो काइनेटिक, उस वर्ड्स के मीनिंग से ही पता चलता है। काइनेटिक मतलब चेंज इन मोशन, मोशन में चेंज होना, उसकी स्पीड में चेंज होना, उसकी वेलोसिटी में चेंज होना। जो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से हो सकती है? चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी। सो हाउ वी कैन डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी? सो काइनेटिक एनर्जी, okay, is the energy possessed by a body. Okay, kinetic energy is the energy possessed by the body. कि बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बॉडी में जो एनर्जी आती है किसके जरिए आती है? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, ओके, इट्स मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, जिसके जरिए बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, सो कैसे डिफाइन किया? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। बॉडी का जो मोशन है, जो चेंज होता है, जिसके जरिए उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हमें कैसे मिलती है? कोई भी ऑब्जेक्ट में जब हम वर्क करते हैं और वर्क के जरिए वो बॉडी का मोशन है उसमें हम जब चेंज करते हैं, सो वर्क इज ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। आगे हमने देखा कि कोई भी वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी देने से वर्क होता है और वर्क करने से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं? हम कोई भी स्टोन है उनको हम पुश कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? हमारे पास जो एनर्जी थी बॉडी में, वो एनर्जी को हमने यूटिलाइज किया। किसमें यूटिलाइज किया? वर्क करने में। वो ऑब्जेक्ट पे हमने वर्क किया, वो स्टोन पे हमने वर्क किया, तो जो वर्क किया उसके जरिए वो स्टोन है वो मूव हुआ, मतलब उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो उस पे जो वर्क किया वो वर्क किसमें कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क करते हैं, तो वर्क है जिसके जरिए उसके मोशन को चेंज करते हैं, सो वर्क इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे हम कार चला रहे हैं, तो कार चला रहे तो हम क्या होता है? पहले हमारे पास फ्यूल एनर्जी है, वो फ्यूल एनर्जी का हमने यूज किया, यूज करके हमने किया कार के ऊपर वर्क किया, वर्क किया तो वर्क करके कार की जो मोशन है उसमें हमने चेंज किया, सो उससे कार को क्या मिला? काइनेटिक एनर्जी मिला। तो हमारे पास जो फ्यूल था, वो फ्यूल एनर्जी के जरिए हमने वर्क किया कार के ऊपर, और कार पे जो वर्क किया वो वर्क है वो कार की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी इज ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसमें क्या होगा? एक बॉडी है वो एनर्जी लॉस करेगा और दूसरा बॉडी है वो एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि हमने देखा कि यूनिवर्सल लॉ क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होना होता है, उसमें हम क्रिएशन और डिस्ट्रॉइंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम काइनेटिक एनर्जी का ले सकते हैं, देख सकते हैं। जहां जहां पे बॉडी का मोशन है और वहां पे जो भी एनर्जी है बॉडी के पास, उसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो जैसे स्पीडिंग ऑफ ए कार, कार चल रही है तो कार के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार, सो दिस एनर्जी ऑफ ए कार इज नथिंग बट ए काइनेटिक एनर्जी। वो उसकी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, रोलिंग ऑफ ए स्टोन, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रोल कर रहे हैं पुश करके, तो वो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आई, एनर्जी किसके जरिए आई? बिकॉज ऑफ रोलिंग एक्शन, सो उसके मोशन से हुए, तो वो ऑब्जेक्ट के पास जो भी एनर्जी है वो क्या हुई? उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई। फ्लोइंग ऑफ ए वाटर, पानी बह रहा है, पानी फ्लो रहा है, तो जब बहता पानी है, फ्लोइंग वाटर है, उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ वाटर, तो वो वाटर के पास तब जो एनर्जी है उसको हम क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए वाटर, काइनेटिक एनर्जी। ब्लोइंग ऑफ ए विंड, विंड है
वो तेजी से जा रहा है। तो विंड के पास जो एनर्जी है वो किसके जरिए है? मोशन ऑफ द एयर, एयर का जो मोशन है उसके जरिए विंड एनर्जी है। तो वो एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, सो रनिंग ऑफ एथलेट, एक एथलेट है, एक पर्सन है, वो दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसके पास जब एनर्जी आती है तो एनर्जी बिकॉज ऑफ रनिंग, बिकॉज ऑफ चेंज इन मोशन, सो वो एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स वी कैन कंसीडर, ओके, कि वेयर वी कैन कंसीडर द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होता है तब उसके पास जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सो ऐसे वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स हमारे डे टू डे लाइफ में बन रहा है, जिसका हम यूज, स्पीडिंग ऑफ ए कार है, रनिंग ऑफ एथलेट है, फ्लोइंग वाटर है, ब्लोइंग ऑफ विंड है। ओके, सो एवरीवेयर देयर इज ए एनर्जी एंड दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दिस एनर्जी इज डिफाइंड एज ए काइनेटिक एनर्जी। Okay, so unit of kinetic energy is same as unit of work. This is nothing but a joule, because energy क्या है? वर्क है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो सेम व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वर्क है वही एनर्जी है, एनर्जी है वही वर्क है, तो वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट ए जूल। अब काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म हम देखते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे वर्क का हमने डिराइव किया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी को हम फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं उसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है, और मूविंग विथ यूनिफॉर्म ऑफ मास m, ओके, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, वो कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। ओके, नाउ लेट इट बी डिस्प्लेड, लेट इट बी डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस हो रहा है, लेट इट बी डिस्प्लेस विथ ए डिस्टेंस s, वो मूव कर रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी जिसके जरिए उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट s। वो कब डिस्प्लेसमेंट होगा? व्हेन, क्या होना चाहिए? व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स F act on it, okay, in direction of force। okay, so let it be displaced, वो ऑब्जेक्ट वो डिस्प्लेस होगा विथ डिस्टेंस s। कब डिस्प्लेस होगा? व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन इट, उसमें कोई कांस्टेंट फोर्स F लगेगा तब वो डिस्प्लेस होगा। कौन सी डायरेक्शन में? जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस होगा। एंड और डिस्प्लेस होगा तो क्या होगा? उसमें फोर्स लगेगा तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी v, okay, which produce an acceleration a in an object। क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट में एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी जिसके जरिए उसमें क्या होगा? एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m, और वो ऑब्जेक्ट इनिशियल u वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो जिसके जरिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस विथ डिस्टेंस s।
वो s डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है और उस पर हम कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहा है, जिसके जरिए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी v, और जिसके जरिए इसमें एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है a। और वी आर डूइंग वर्क, हम इस ऑब्जेक्ट पे अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या सिचुएशन को हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि लेट कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ओके, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ओके, यूनिफॉर्म, एंड लेट इट बी डिस्प्लेस। सो वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस s, ओके, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी है वो चेंज इन वेलोसिटी v, u में से इसकी वेलोसिटी v हो रही है, और when there is a change in velocity it produces acceleration in an object, वो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सो हियर वी आर डूइंग द वर्क ऑन द बॉडी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जो वर्क कर रहे हैं जिसके जरिए वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, उस मोशन में चेंज हो रहा है, मतलब वो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हियर व्हाट हैपेंस, सो हियर वर्क डन ऑन बॉडी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द बॉडी, ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, सो दिस वर्क वी आर गेटिंग इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ ये जो वर्क हो रहा है यहाँ पे, अब दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अकर्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में एस डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, सो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन हमारे पास मोशन का था, उसमें हमारे पास थर्ड इक्वेशन था जिसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रिलेशन दिया था। ओके, सो हियर वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट occurs in an object, okay, can be found by using third equation of motion। जो मोशन का थर्ड इक्वेशन है उसको यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट s फाइंड करना, तो s वी आर गेटिंग वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन 2a, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये बॉडी जो है जिसका मास m है, जिस पे हम F फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स के जरिए उसमें वर्क हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसमें s की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इनके इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, इसमें एक्सेलरेशन F प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट s वी आर गेटिंग इज वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन 2a। अब फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, सो व्हाट वी कैन राइट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट वी आर गेटिंग इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी आर गेटिंग s is equal to, now we know that force is produce the acceleration in body। इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स वी आर गेटिंग इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वी कैन रिप्लेस द F, ओके, with mass into acceleration, v square minus square upon 2a, okay, where F is equal to m into a, we can replace it। okay, now a should be cancelled, so we are getting is half m v square minus u square। so this we are getting is nothing but a work done on the object is equal to w is equal to half m v square minus
यू स्क्वायर, ये हमें वर्क मिला। और ये जो वर्क मिल रहा है वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मोशन में, मतलब इट प्रोड्यूस द काइनेटिक एनर्जी इनटू बॉडी। सो हियर वर्क डन on an object, okay, is convert into kinetic energy, okay, of a body, kinetic energy of a body। जो वर्क हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ओके। सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बट इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इट मीन स्टार्टिंग में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। सो एट दैट टाइम वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे u की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। सो वी आर गेटिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। Kinetic energy equal to half mv square we are getting, okay। So once again consider how we can derive the equation for kinetic energy, okay। So here let us we are consider the situation। So according to the situation we are applied the force on the object, so it do the work on the object। So work done is defined as a W is equal to force into displacement। This is our equation number 1, okay। And here body is displaced, and by the displacement of the body its velocity changes from u to v and produces acceleration a। So displacement occurs in the object can be found by using the third equation of motion। So according to the third equation of motion 2as is equal to v square minus u square। So s we are getting v square minus u square upon 2a। So from equation 1 and 2 we can write the value of s over here। So we are getting w is equal to f into v square minus u square upon 2a। And here force applied is produce the acceleration in body। So according to the second law of Newton we can write force is equal to mass into acceleration। So we replace the force with mass into acceleration। So we are getting w is equal to ma v square minus a square upon 2a। So a should be cancelled, so we are getting half m v square minus u square। And here this work done is converted into the form of kinetic energy of a body। So work done is nothing but a kinetic energy of a body। So this we are getting is 1/2, okay, m v square minus u square। और अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट पोजीशन है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जीरो होगा। सो वी आर गेटिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म और इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो किस पे डिपेंड करेगा? मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करेगा। इट मींस अगर बॉडी हैवियर मास है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। मतलब अगर हम मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल करती है। इसलिए हम हमारी रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा सा स्टोन है जिसका मास बहुत बड़ा है, वो स्टोन को हम हाथ से फेंकते हैं तो उसका हमें ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। उसकी जगह एक स्मॉल बुलेट है, उनको गन से फेंकते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है। क्यों? स्टोन बड़ा है, मास बड़ा है, पर हाथ से फेंकते तो इनकी वेलोसिटी क्या है? कम है, तो उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती है। तो बुलेट का मास बहुत छोटा है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो जिसके जरिए क्या होता है? उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर मास ज्यादा है तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा है तो भी काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो को चेंज करके हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर दो पर्सन है, दोनों पर्सन का मास सेम है और दोनों पर्सन एक दूसरे के सामने दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे से स्ट्राइक होते हैं, तो कौन से पर्सन को ज्यादा इंजरी होगा? जो पर्सन का स्पीड कम है वो पर्सन को दूसरा पर्सन ज्यादा हर्ट करेगा। क्यों? जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिसकी स्पीड कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। क्यों? बिकॉज मास हमने दोनों का क्या रखा है? सेम रखा है। ठीक है, अगर एक कोई बहुत बड़ा पहलवान है, ठीक है, और दूसरा जो है वो एक वीक है, अब वो दोनों स्ट्राइक हो गए तो क्या होगा? वीक वाले को ज्यादा इंजरी होगा, क्योंकि दोनों केस में हम वेलोसिटी सेम रखते हैं, दो सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो जिसका मास ज्यादा है उसके पास एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो ज्यादा हमें हर्ट कर सकता है, ज्यादा हमें इंजर्ड कर सकता है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करता है, और उसकी फॉर्मूला है हाफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर। सो मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है और वेलोसिटी है उसमें स्क्वायर से प्रोपोर्शनल करता है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल हम देखते हैं इनका। ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 11.3 आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है 11.3। उसमें दिया है ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है 15 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v दे दिया है, डायरेक्टली हमें 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv square as per the formula. So half mass of the object is 15, velocity is 4, so square of 4 is 16. Okay, so by solving this, okay, we are getting energy is equal to 120 joule, because unit of energy is a joule. So we are getting is equal to 2 into 8, and 15 into 8 is 120 joule. So we are getting kinetic energy of the object is 120 joule. Okay, now second example लेते हैं, example number 11.4। ठीक है, 11.4 का एग्जाम्पल में क्या दिया है? कार दिया हुआ है। जो कार है इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, और मास ऑफ द कार दिया हुआ है 1500 kg दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन ऑन दिस कार। इस कार पे वर्क कितना हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम रूल जानते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, पहले तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। सो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है, ऐसे करेंगे तो इसका हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 25 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड वी आर गेटिंग इस इनिशियल स्पीड। फाइनल वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करते तो 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, तो ये हमें मिलेगा 50/3 मीटर पर सेकंड हमें मिलेगा। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है? वर्क। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज कार की वेलोसिटी है वो 30 से हम 60 तक ले जा रहा है, मतलब वी आर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। इट मीन्स व्हाट वर्क वी आर डन ऑन द कार इज कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी। सो योर वर्क डन इज नथिंग बट ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार। वर्क डन कितना होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कार की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस करेंगे, तो वी आर गेटिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द कार। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv square minus initial is m u square,
बिकॉज फाइनली कार की स्पीड v है और इनिशियली कार की स्पीड u है, मास तो दोनों में सेम रहेगा. सो वी आर गेटिंग इज हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वी आर गेटिंग. अब उसकी वैल्यू रख देते हैं. सो यहाँ पे हाफ मास दिया हुआ है 1500 kg, मास ऑफ द कार. फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमें मिला 50/3. सो वी आर गेटिंग 50 इंटू 50/3 इंटू 3 9. और इनिशियल वेलोसिटी हमें मिला है 25. सो 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 3. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2500, यहाँ पे आएगा 625, 2500 माइनस 625 एंड डिवाइड बाय 9. ठीक है, वो मल्टीप्लाई विथ 1500 एंड वंस अगेन डिवाइड बाय 2. तो अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमें मिलेगा 156,250 जूल. 1,56,250 जूल वर्क है वो कार पे हम करेंगे. इसकी वेलोसिटी को 30 से 60 तक लाने में, इतना वर्क हम करेंगे. ठीक है, so this is all about the kinetic energy, okay, of a body. kinetic energy के बारे में हमने देख लिया सारी चीजें. ठीक है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. Okay. पोटेंशियल एनर्जी. तो आगे हमने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड, पोजीशन और शेप. तो हमने देखा कि स्पीड से जो चेंज हो रहा है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोजीशन से जो चेंज हो रहा है या तो शेप चेंज करने से जो चेंज हो रहा है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क करते हैं और वर्क के जरिए वो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, उसका मोशन चेंज होता है, सो व्हाट वर्क डन इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बट अगर वो ऑब्जेक्ट, उसका मोशन चेंज नहीं होता है, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, बट अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, कुछ वर्क करते हैं जिसके जरिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है या तो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है, उससे जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. और उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट को जो एनर्जी मिल रही है, उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है, वो एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी. बाय body because of change, okay, because of change in its position or shape or configuration. okay, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती है या तो उनका शेप चेंज होता है या तो उनका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो फॉर एग्जांपल, उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं क्या होता है. ठीक है, सो स्ट्रेचिंग रबर. हमारे पास एक रबर है, रबर को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं. और अगर स्ट्रेच करने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो वो रबर हमें ओरिजिनल पोजीशन पे आके हर्ट करेगा, इंजर्ड करेगा. तो जब हम रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो रबर का क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है रबर का. वो शेप चेंज होने से जो रबर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो किस में ट्रांसफर हो रहा है,
पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो, तो रबर को जो एनर्जी मिलती है वो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, और जब रबर को छोड़ देते हैं तो रबर हमें वंस अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आके हर्ट कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट ए पोटेंशियल एनर्जी। हम उनको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के जरिए स्प्रिंग के ऊपर जो वर्क हो रहा है, वर्क से इसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, क्या चेंज होता है, उसका शेप चेंज होता है, उसका कन्फ्यूग्रेशन चेंज होता है। तो वो जो चेंज हो रहा है, इसके जरिए इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और वंस अगेन हम स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो वंस अगेन वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। बोइंग, ठीक है, हमारे पास एक धनुष है, धनुष को हम खींचते हैं, वो है उसको हम खींच स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम उनको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, जिसके जरिए उसकी कन्फिगरेशन में चेंज हो रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और जैसे ही हम वो खींचे हुए थ्रेड है, स्ट्रिंग है, उसको छोड़ देंगे तो जो तीर है वो तेजी से दूर जाएगा। जितना हम ज्यादा खींचेंगे उतना तीर ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि जितना हम ज्यादा खींचते हैं, जितना हम वर्क ज्यादा कर रहे हैं, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है। और जैसे हम छोड़ देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ वर्क, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और तीर है वो आगे जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या चेंज हो रहा है, उसकी पोजिशन में चेंज हो रहा है, उसकी हाइट है वो चेंज हो रही है। तो तब जाके बॉडी में जो वर्क हो रहा है वो वर्क उसमें किसके जरिए स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के जरिए स्टोर हो रहा है। ठीक है, और ऊपर से जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगा। तो ऐसे जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो ऑब्जेक्ट में चेंज आ रहा है, वो उसमें स्टोर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमने कैसे डिफाइन किया, द एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। हमने बॉडी पे वर्क किया, और जो वर्क किया वो वर्क के जरिए आइदर तो हमने बॉडी से की पोजीशन चेंज की, उसकी हाइट है उसको हमने चेंज किया है, या तो उसका शेप है उसको हमने, जैसे बलून है, बलून को हम दबाते हैं तो उस पर फोर्स लगा, उस पर वर्क करे तो वर्क किसमें स्टोर हो रहा है, बलून में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, या तो उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं जिसके जरिए उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर होता है, और जब वो रिलीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी के जरिए वो ऑब्जेक्ट पे फिर से वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी का जो है, ठीक है, जहां पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्ट को हम उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी, ओके, व्हेन रेज्ड थ्रू ए हाइट h, if object increase its energy through a raise of object at height, ओके, कोई ऑब्जेक्ट को हम कुछ हाइट पे रेज करते हैं, ठीक है, तब उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, द ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी, ऑब्जेक्ट की एनर्जी इंक्रीज थ्रू ए रेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्क हो रहा है, तो वर्क इज डन, इसमें जो वर्क हो रहा है, सो हियर वर्क डन इज अगेंस्ट gravitational force act on an object,
ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं. ओके, सो द एनर्जी हियर इज द एनर्जी produced in an object is called ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जिसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करके यहाँ तक ले जाते हैं. ओके, विथ हाइट h, ये हाइट h तक इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, सो योर वर्क डन इज कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वर्क किया वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क किया है. ठीक है, उसकी हाइट है उसको हमने चेंज किया है, तो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ पोटेंशियल एनर्जी है वो अगेंस्ट ग्रेविटेशन, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो इसका इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, इक्वेशन ऑफ ओके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं. सो लेट कंसीडर, हम कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. लेट कंसीडर, ओके, लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and raise it at height h. ओके, रेज इट हाइट h. तो उसमें जो वर्क होगा वो वर्क कितना होगा, then work done on an object is equal to force into displacement. वर्क डन होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके अगेंस्ट में लग रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी फोर्सनल के अगेंस्ट में लग रहा है, सो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो हियर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ए g, so f we are getting is m into g and s is nothing but a height of the object. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी रिलीज हो रही है, सो वर्क डन वी आर गेटिंग इज इक्वल टू mgh. mgh, और जो वर्क हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सो वर्क डन इज टॉर in form of potential energy. ये ऑब्जेक्ट में जो वर्क हो रहा है वो ऑब्जेक्ट में किस में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, सो दिस इज इक्वल टू mgh. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया mgh. ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, P इज इक्वल टू mgh. सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड ऑन मास एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी में हमने देखा था वो किस पे डिपेंड था, मास एंड वेलोसिटी, बिकॉज वो मोशन से था. यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी किससे, पोजीशन से, वो डिपेंड किससे डिपेंड होगा, हाइट पे. सो मास एंड हाइट. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हेवियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, या तो कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. अगर हमारे पास कोई बड़ा सा स्टोन है और बड़ा सा स्टोन से हम इतनी हाइट से फेंक रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास एक छोटा सा स्टोन है, वो छोटे से स्टोन से बहुत हाइट से फेंक रहे हैं, तो किससे ज्यादा इंजरी हो सकती है, छोटे से स्टोन से हो सकती है, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. अगर सेम हाइट से हम दो ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, एक जिसका मास बड़ा है एक का कम है, तो बड़े मास वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है, अगर दोनों का मास में हाइट डिफरेंस है तो जिसकी हाइट ज्यादा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज ए mgh, और वो डिपेंड करेगी मास एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, जिसको आपको समझ में आ जाएगा.
एग्जाम्पल नंबर 11.5, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 11.5 है। वहाँ पर क्या दिया, मास दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन इज 10 kg and the height of the object is 6 meter, then find out the potential energy। पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे g की वैल्यू दिया हुआ है, g we have to take is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। सो वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो मास दिया हुआ है 10, g दिया है 9.8, h दिया हुआ है 6। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू इज इक्वल टू 588। okay, we are getting the value of this is 588। okay, is joule is nothing but a potential energy of the object। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11.6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसमें, दिया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 12 kg। 12 kg का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन इज 480 जूल। जो ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 480 जूल। ओके, और जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट विच हाइट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ये ऑब्जेक्ट कौन सी हाइट पे होगा अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी 480 है तो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज mgh। so we have to find out the h, so potential energy upon mg। so potential energy is 480 upon mass दिया हुआ है 12 into g दिया हुआ है 10। so ये कैंसिल होगा, ये 4 आ जाएगा। so we are getting 4 मीटर is the height of the object। जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर की हाइट पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास एंड हाइट। हाइट और पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, उसका पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे ले जाते हैं विथ हाइट h, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh होगा। ठीक है, और यही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास मास है बे, इनको हम ऐसे यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे करके यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनका हाइट डिफरेंस क्या हुआ, h हुआ। ठीक है, वो ऐसे करके गए, उससे कोई डिपेंड नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट m है और इसको हम ऐसे करके यहाँ पे ले जाते हैं, अगर यहाँ पे पाथ ऐसा है, फिर भी अगर ये दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस क्या है, h, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी mgh। सो इट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। वो ऑब्जेक्ट को हम कौन से रास्ते से हम ले जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है, अर्थ सरफेस के उसकी हाइट कितनी है, बस। डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द बॉडी। वो बॉडी की जो हाइट है उस पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी और उसके मास पे डिपेंड करेगी। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। Okay, so today here we will stop. So in today's session we are study about the kinetic energy and potential energy, and the sum of kinetic and potential energy is nothing but a total mechanical energy। और हमने फॉर्मूला डिराइव किया, kinetic energy we are getting is half mv square and potential energy we are getting is mgh। okay, so revise this concept and understand this concept because very important concept of this chapter, kinetic energy and potential energy। okay, so in next session we will discuss about the how kinetic energy is converted into potential and potential energy is converted in form of kinetic energy। okay, thank you and have a nice day।